on behalf of the Department of Yoga Science and Education also. On the occasion of some expert from Haridwar Sanskrit University, pleased enough to accept our invitation for this workshop. Dr. Lakshmi Narayan Joshi ji, he is the head of the Department of Yoga Science in Haridwar University, and we have proud privilege to have him here. Along with him, Professor Ruhel ji is also here. He is the head of the Department of Sports of our university, and different professors of the different departments, especially from the Yoga department, from education department, their students, and the media personnel. So today is a great day for the Department of Education as well as for the Department of Yoga Science, that an eminent scholar, Nadi Vigyan, who has the expertization in the field of Nadi Vigyan, so a prominent scholar, more promising in the modern usage. So he is here. I have this proud privilege to invite him on the dais on the occasion of this presentation of this workshop. Please, sir, please take your seat on the dais. Along with him, I also invite Professor Ruhel ji just. Okay, thank you very much. As per the Indian tradition, I would like to welcome Dr. Joshi ji just to pay the homage to the goddess Saraswati, lighting the lamp. Sir, please. Ruhel ji also accompany Dr. Joshi ji, Dr. Jitendra ji, and all the faculty members of Yoga Science, including Dr. Purohit ji from Physics Department. Sir, please join us for the आप करिए सर, करिए आई एम हियर, कोई दिक्कत। चलो करो ना, करो, कोई बात, एक ही बात। आप आइए पहले, चलो गेस्ट हो आप, चलो मैं खड़ा तो हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो पुरोहित जी, चलो चलो पुरोहित जी आओ। पुरोहित सर को, सर आप आइए ना पहले। अच्छा हो गया, आओ पुरोहित जी, आओ मेरे साथ, आओ, आ जाओ। बस इनको दे देते हैं योग वाला। लो आप लोग भी कर दो सर, माला भी पहना देंगे इनको। ठीक है सर। बस अभी इनका इंट्रोडक्शन करके ना, बस अभी इनका शुरू है। कोई नहीं, चलो ठीक। For the formal welcome, I would like to invite Dr. Professor Ruhel ji just to offer the flower and welcome the guest here.
कोई नहीं, आप ऊपर आ जाओ सर, प्लीज ऊपर आ जाओ। अच्छा, आप बीच में आ जाओ, आ जाओ। चलो मैं आपकी इधर खड़ा होता हूँ जी। थैंक यू सर, वेलकम। यहाँ बैठिए सर, आप बैठिए। I take this proud privilege to introduce Dr. Joshi ji before the audience in this August gathering. Dr. Lakshmi Narayan Joshi ji, he has been working as head of the Department of Yoga Science, Dean Student Welfare in the Uttarakhand University, Haridwar, founder faculty head Department of Yogic Science. Dr. Joshi ji has completed his bachelor's and master's in physical education and yogic science and PhD in yoga therapy. He is having 34 years of experience in yoga and yoga therapy. More than 45 research papers is the credit of him. Published in international and national journals. He has also written 6 books, given more than 800 lectures and workshops in HRDC academic staff colleges throughout the country. Given more than 800 lectures, workshops of yoga and Nadi Vigyan in European and Asian countries like Russia, Bulgaria, Spain, Germany, South Korea, Indonesia, China, Singapore, Sri Lanka, Thailand. He has also been awarded by the Master of Yoga Therapy by United Union of Soviet Socialist Republic of Russia. Now it is known as simply Russia. Awarded 2 times by Honorable Governor of Jammu and Kashmir and Uttarakhand, also awarded by CM Speaker of Uttarakhand and Academic Staff College, Kumaon University, Nainital, for great contribution in the field of yoga and yoga therapy, and so many other contributions are there from the side of Dr. Joshi, but due to the scarcity of time, I'm not really going into the depth of those publications. So I would like to take this opportunity to invite Dr. Joshi ji without wasting even a single moment, just for the deliberation and presentation on the Nadi Vigyan. Dr. Joshi ji. इनको लगा ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षर्यं दधाय स्थिरङ्गै तुष्टवां गुं सस्तनो विदसे महिते महितं दधायुः। ओम शांति शांति शांति। आज के कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे योग के विद्यार्थी बैठे हैं और एक पेशेंट बैठे हैं कि नहीं, पहले वो पेशेंट जो प्रायोरिटी में थे डिपार्टमेंट के, आपके को उनकी वाइफ है ना, जो वो हैं धर्मेंद्र जी के वाइफ हैं क्या? अगर हैं तो पहले उनसे ही शुरू करें, नहीं तो फिर आगे बढ़े। आए नहीं, मैं रिक्वेस्ट किया था उनको बेचारों को, मैंने कहा आप आएँ तो जैसे ही आए उनको प्रायोरिटी में देख ली। इन द मेन टाइम, अच्छा ठीक है। साथियों, मैं सबसे पहले तो हमारे प्रोफेसर डीन सर का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और बहुत शॉर्ट टाइम पे मैंने आपसे निवेदन किया था, और यही बड़प्पन होता है, बड़ों का आशीर्वाद होता है। आपने इसे स्वीकार किया और इतना सिस्टमैटिक सेकंडों में उसके कर दिया, बहुत 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 बड़ी बात है सर। और मेरे बहुत ही अभिन्न प्रोफेसर गुलाब सिंह सर का मैं भी अभिनंदन करता हूँ। आपसे भी मैंने बात की थी, और सर से तो मेरी, शर्मा सर से तो मॉर्निंग में ही बात हुई, और ये सारा सिस्टम में एकदम हो गया। मेरी इच्छा थी कि आज मैं एज एग्जामिनर आया हूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि मैं जस्ट आई वांट टू शो यू द प्रैक्टिकल थिंग ऑफ योगिक साइंसेस, दिस रीज़न आई एम बिटवीन यू। और ये छोटा सा प्रेजेंटेशन ज़्यादा बच्चों के लिए है, और हमारे साथी कलीग्स जितने हैं प्रोफेसर्स उनके लिए भी है, क्योंकि एक जो आप, मैं सर से भी यही कह रहा था कि योग को सुबह मॉर्निंग भी बात कर रहा था, ये योग साइंस नाम है इसका, ये साइंस है। और
आध्यात्मिक पक्ष को तो अभी हम नहीं टच कर रहे हैं, हम साइंटिफिक पार्ट को टच कर रहे हैं ताकि ये इजीली एसेस कर सकें, आप सीख सकें। तो ये प्रैक्टिकल है हमारे पास। तो इसके लिए पीछे का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि हमारी तीसरी पीढ़ी इस काम को कर रही है। सर को बता रहा है, मेरे दादा से, मेरे पिताजी से, मैं भी इसी में हूँ। अच्छा, हम तो फॉर्चुनेट हैं कि इसमें मास्टर्स आ गया, यूनिवर्सिटीज़ में जॉब आ गई, लेकिन जब हमने 2 साल की उम्र में सीखा, हमें थोड़ा ना पता था कि हमें ये काम करना है। हमें तो परंपरा को सीखना था, नौकरी नहीं करनी थी, हमें था कि परंपरा को। मेरी वाइफ भी शिमला यूनिवर्सिटी में योग में हेड है, तो वो अब 4th-5वीं पीढ़ी भी मतलब जाएगी आगे, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन उनको हम सिखा रहे हैं, हमारे बच्चे दोनों सीख रहे हैं। तो हमारे वहाँ 2 साल की उम्र से डाल देते हैं। हमने तो अपने 1.5 साल से भी पहले डाल दिए थे, बल्कि उसकी वीडियोस हैं तो वो और जल्दी सीख रहा है। तो उसमें क्या है कि दिस इज द पार्ट ऑफ साइंस एंड प्रैक्टिस। तो दिस इज ओनली द रिक्वेस्ट कि आप इसको साइंटिफिक पार्ट को देखें सबसे पहले, स्पिरिचुअल पार्ट तो बहुत बड़ा है, और प्रैक्टिस पार्ट को देखें। तो मेरे पास, क्योंकि मैं विद्यार्थी रहा हूँ, परंपरा में भी गुरु शिष्य परंपरा से आया हूँ, मेरे गुरु थे, 7 साल गुरु जी के पास रहा, फिर एकेडमिक सिस्टम में रहा हूँ, दोनों तरह से हमने इसको पढ़ा है, योग को दोनों विधाओं में पढ़ा। तो एक चैलेंज था जब मैं बच्चा था छोटा, तो जैसे कि योग हम सब करते हैं, बहुत अच्छे, टाइम लगता है, बहुत अच्छा है योग। अभी भी बात करें, योग अच्छा है जी, मैं करता हूँ, समय लगता है, और वो टीचर भी बताता है कि समय लगता है, और हम ये कहना चाहते थे समय नहीं लगता। तो ये बताना चाहते, बोला समय नहीं लगता तो करके दिखाओ। तो हमारे पास यही था कि हम लोगों को ये बता पाएं कि इसमें समय नहीं लगता है। उस चक्कर में, उसके कारण हमने इसको डेवलप कर दिया नाड़ी विज्ञान से। यहां से सारा काम शुरू हुआ कि एक चीज को हम प्रूफ करना चाह रहे थे कि आपको तुरंत ही रिलीफ कर दें, इसके लिए हमने इसको डेवलप किया। ये हमारी प्राचीनतम पद्धति है, और जितना भी ध्यान आपका इसके ओर आकर्षित होता है, नाड़ी शब्द को एक बहुत संक्षेप में मैं आपको कहना चाहता हूँ। नाड़ी शब्द आता है पाइपलाइन, पोला, खाली। हिंसा के रूप में भी नाड़ी का नाम है आयुर्वेद में, कई उसके पर्यायवाची, हिंसा भी नाड़ी का नाम है। तो लेकिन मेन जो हम शब्द में लेते हैं कि दिस इज लाइक ए पाइपलाइंस। ये पाइपलाइंस हैं जो कैरी करती हैं सब कुछ, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, इंटेस्टाइन, सब नाड़ी में कंसिडर होती है, यानी कुछ ना कुछ पास कर रही हैं, तो उन्हें हम नाड़ी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने योग के तो विद्यार्थी हैं, सीनियर प्रोफेसर बैठे हैं, नाड़ी कहते ही सार आपका सारा ध्यान आयुर्वेद में चला जाएगा। और हाँ जी, हम जानते हैं नाड़ी में वात पित्त कफ नाड़ी होती है, और एक और स्पिरिचुअल में भी चला जाएगा, बोला हाँ 3 नाड़ी होती हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तो चित्र में भी दिख रही है। तो आदमी कहता है कि नाड़ी इज द मेन पार्ट ऑफ आयुर्वेद। योग के विद्यार्थी भी कहते हैं मैं कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, तो बोले नहीं, नाड़ी तो आयुर्वेद का बोल रहे भाई साहब। आयुर्वेद में थोड़ा सा आयुर्वेद को अगर आप देखेंगे, 8 अंग आयुर्वेद के हैं। कायिक चिकित्सा से शुरू होके वाजीकरण तक जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हमारा भी 8 अंग है, उनका भी 8 अंग है। और ये जो पहला वाला अंग है कायिक चिकित्सा, यहां से हम इसे बहुत कोरिलेटेड करते हैं। जितने सीनियर लोग बैठे हैं और जितने छोटे बच्चे बैठे हैं, मतलब हमारे जो नए विद्यार्थी हैं, उनको कह रहा हूं, तो कायिक चिकित्सा इज द मेन पार्ट। ये कायिक चिकित्सा का मतलब है अग्नि तत्व की चिकित्सा। जितने आप बैठे हो, आपकी सारी समस्या इसके अंदर आती है। वो पहले वाले में बाल रोग भी नहीं, भूत चिकित्सा नहीं, शल्य नहीं, कुमारी, ये कुछ नहीं। सबसे सारी जितने डिसऑर्डर आपके हैं, डायबिटीज, मलाइटिस, आर्थराइटिस, कुछ भी है, वो सारा उसमें आएगा कायिक चिकित्सा। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्लो मेटाबॉलिज्म। अगर आपने अपने मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर लिया, तो आप अपने बहुत सारे रोगों को दूर कर पाएंगे। और हम यही पढ़ाते हैं कि आयुर्वेद में 8 अंग हैं, योग में भी 8 अंग हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म है, हमारे षटकर्म है प्यूरिफिकेशन के लिए। और हमारे वहां हम कह रहे हैं कि उनके पास नाड़ियों का नाड़ी परीक्षण एक विधि है। डायग्नोस्टिक की कई तकनीक है, उनमें से एक तकनीक प्रश्न परीक्षा, दर्शन, मतलब आपको देख के बताएगा, प्रश्न करेगा, हाँ जी कैसा लग रहा है, दर्द हो रहा है, तो प्रश्न करके पता, मतलब रोग को परीक्षण करने के लिए। देन ही इज हैविंग द टेक्निक नाड़ी परीक्षण। नाड़ी डायग्नोस्टिक कर रहा है, वो देख रहा है वात पित्त कफ का क्या, कितनी विकृति है, क्या रेशियो में चल रहा है, क्या दिक्कत है। वहां उनका एक पार्ट है, हमारे वहां ऐसा नहीं है। ये ध्यान हमारा कम जाता है। अभी वो पुराने लोग नहीं बैठे, जैसे हम लोग जब छोटे होते थे, तो अभी भी हमारे वहाँ जो प्रैक्टिस होती है, जो हमारी प्रैक्टिस होती है, उसमें बिना जिह्वा बंद के नहीं कराते। मतलब जो भी करना है, आप जिह्वा बंद लगाओ, अब करो आसन, जीभ को लॉक कर ले, अब कर, बोलना ही नहीं है। तो कहते हैं खिचड़ी का अभ्यास भी, मतलब परंपरा है।
अच्छा, कहीं पर हमारे गुरुकुलों में परंपरा क्या थी कि हम जैसे जब टेक्निक स्टार्ट करते हैं, जैसे आप वार्म अप करें, हमारे में ऐसा नहीं करें, तो पहले लिटा देगा, उत्थान पाद और नौकासन करेगा, फिर सर्वांग करेगा, उसके बाद आसन शुरू होंगे। समझ परंपरा जैसे सिस्टम। तो वो कारण यही था कि हमारे वहाँ सारा नाड़ियों से चलता था। तो हमारे पास भी ये आइडिया ऐसा है कि भाई हमने देखा आसनों की संख्या बोली 84 लाख। कितने आसन होते? बोले 84 लाख होते हैं। वो 84 लाख होते हैं तो आपको रिव्यू रेफरेंस करो, रेफरेंस में कहा गया होते हैं लेकिन प्रमुख नहीं है। वो प्रमुख कितने हैं? बोलो घेरंड संहिता 32 आसन होते हैं। तो 32 आसन मिले सिर्फ घेरंड संहिता में लिखित, जिससे हम मानेंगे कि कितने होते हैं। और बोला फिर हठ प्रदीपिका में 15, शिव संहिता में 4, पतंजलि योग सूत्र में सिर्फ परिभाषा और लाभ। तो हमारे पास घुमा के जब हमने चंद्र संहिता सारे ग्रंथ मिलाए तो आसनों की संख्या है 84, जो रिटर्न मटेरियल में। अभी इंटरनेट को स्क्रॉल करोगे तो 1200 से अधिक वेरिएशन ऑफ आसनास यू कैन सी, लेकिन वो हमारे परंपरागत आसन नहीं है। तो हमारे परंपरागत आसन कहे गए इतने, हुए कम क्यों? तो हम ये कह रहे हैं कि एवरी आसन इज अ पार्ट ऑफ द नाड़ी। हर आसन एक विशेष नाड़ी के साथ लगा हुआ है। उस नाड़ी को फ्री फ्लो ऑफ द प्राणिक एनर्जी कर पाओ तो लाभ मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने लिमिटेड आसन बनाए। तो इसलिए लिमिटेड आसन, तो उनके बेनिफिट तो हमने देखा भी, उनके क्रम को भी घेरंड संहिता में देखो, क्रम देखोगे आप, कोई भी उसको देखोगे कहीं भी आपको ओवर स्ट्रेचिंग नहीं मिलेगी। आप पूरा देखो, ओवर स्ट्रेचिंग नहीं मिलेगी। धनुरासन कर रहे होंगे पीछे बच्चे, बेटा थोड़ा ध्यान से सुनो, बातें मत करो। धनुरासन को करने का तरीका अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, अंगूठों को पकड़ के खींचना है। पंजे वंजे से ऐसा वैसा कोई नहीं, वो अंगूठे को ऐसे पकड़ना है, इसके अब खींचना है। तो हर जगह वो अंगूठे के पास की नाड़ियों के बारे में बात करता है। अच्छा, बोले जहां नाड़ी की बात नहीं करता वहां क्या करता है? वहां कंद योनि स्थान की बात करता है। आयुर्वेद में भी आता है कुर्म, नाड़ियों का जो एक रचना है वो कुर्म, नाभि हमारे लिए सर, नाभि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू साइंटिफिक पार्ट ऑफ योगा, साइंटिफिक पार्ट। मैं स्पिरिचुअल पार्ट की एक भी पैसे की यहां बात करूंगा ही नहीं, सिर्फ साइंटिफिक पार्ट जिसको आप एग्री करेंगे। देखिए हमारे वहां क्या है, बोला नाड़ियां 72,000 होती हैं। जो कंद यानी जड़, योनि माने उत्पन्न होना, जो स्थान से उत्पन्न होती है उसे कहा गया कंद योनि स्थान या कुर्म। आयुर्वेद में कुर्म कहा गया, कछुआ है, इससे निकला। तो 72,000 ना नाभि से निकल के चारों ओर जा रही है। तो हमारे वहां ये मान्यता है, जितने भी आप काम परफॉर्म करोगे, सीनियर प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन बैठे हमारे साथ में, अरे भाई गेम सारे कमर कस लो। कमर से मुझे क्या करना? पढ़ाई आ रही, एग्जाम आ रहे, कमर कस लो। अबे एग्जाम का कमर से क्या मतलब है? अरे भाई सीएम आने वाला, कमर कसो, काम करो। कमर क्यों कसनी है? हाथ कसो, दिमाग कसो, सिर कसो, हाथ पैर ना, कमर कस लो। इनडायरेक्टली दे आर इंडिकेटिंग यू एक्टिवेट योर कंद योनि स्थान, 72,000 नाड़ी को एक्टिवेट कर ले। तो हम इसका भी ये कह रहे हैं कि हर्निया नहीं होगा। आप पावर लिफ्टिंग में बेल्ट लगा रहा है, अच्छी बात है कि चलो भाई स्टमक रेक्टस एब्डोमिनस स्ट्रेंथन नहीं है, लेकिन कंध में उसको एक्टिवेट करने के लिए मार्शल आर्ट में बेल्ट लगा रहा है, सब स्पोर्ट्स में बेल्ट लगा रहा है। फीमेल एनर्जी को तो बहुत एडवांस एनर्जी हमारे वो माना गया। तो फीमेल के लिए कहा कि ऐसे पल्ले करने साड़ी के, 1 2 3 4 5, उसे खोसना है नाभि पे, समझ रहे? उससे, ताकि हमारे कंध में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं चली जाए। इतना एडवांस है। और साइंटिफिक पार्ट करें भी, नाभि नाभि अमेरिकल कॉर्ड सेपरेट करके बेबी को अलग करते हैं लास्ट में। उसका सारा नरिशमेंट पेट में माँ के एक नाड़ी से हो रहा है, अमेरिकल कॉर्ड से हो रहा है। देन वी सेपरेटेड एंड स्विच इट ऑफ। पेट के अंदर उसे ऑक्सीजन भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, 9 महीने तक पूरा अमेरिकल कॉर्ड नाभि से नाभि कनेक्टेड, बाद में सेपरेट कर लेते हैं। तो कंद योनि स्थान हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। और अभी तो थोड़ा बेसिक्स है, बहुत सारे काम नाभि के ऊपर हो रहे हैं। तो अगर आप कंद को एक्टिवेट कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो हमारे जो आसन है, धनुरासन, ये सारे आसन क्या काम कर रहे हैं, अगर वो डायरेक्टली नाड़ी से नहीं जुड़े हैं तो कंध से जुड़े हैं, वो कंध को एक्टिवेट कर दे रहे हैं ताकि आपका सारा काम हो जाए। और ये सारा जो सिस्टम है, अगर आप देखेंगे योग में बड़ा एडवांस है। तो हमारे वहां कहा कि संख्या 72,000 है। और इन आसनों को, हर एक आसन एक नाड़ी के साथ लगा है। जैसे वज्रासन का पढ़ रहा था, वज्रासन का नाम वज्रासन इसलिए है क्योंकि एनएस के बाईं ओर वज्रा नाड़ी होती है और हील हमारी वज्रा नाड़ी को दबाती है, जिससे अपान वायु एक्टिवेट होती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है।
इसलिए उसका नाम वज्रासन है। वो द बेनिफिट ऑफ वज्रासन है कि वज्र के समान ताकतवर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो ये हमारे हर इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम नाड़ियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर वो जो हम काम कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये काम कर पाएंगे। तो नाड़ी का काम क्या है कि आप एक ऐसी पाइपलाइन जिसमें आपको फ्री फ्लो करना है, तो उस सिद्धांत पे हमने इस काम को किया। डेफिनेशन नहीं आपको, ये हमने 3 सिद्धांत इसके नाड़ी विज्ञान के बना दिए सर। हमने कहा कि देखिए हमारा ऑर्गन फॉरएवर काम कर सकता है, ठीक है, हमारा ऑर्गन कोई भी फॉरएवर काम कर सकता है। उसको 3 चीज अगर आप उपलब्ध करा दो, आपका हार्ट हमेशा काम करेगा। इफ देयर इज अ कंडीशन, उसको 3 चीज मिलती रहेगी, फॉरएवर काम करेगा। नहीं मिलेगी तो उसको डिसऑर्डर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप एंड हो जाएगा लाइफ। तो बोला क्या, ही रिक्वायर द कंटिन्यू ब्लड सप्लाई फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ऑर्गन को यदि कंटिन्यू ब्लड सप्लाई देते रहोगे तो वो ऑर्गन काम करता रहेगा। जैसे कार्डियक अरेस्ट में हमारी 3 मेन आर्टरीज हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे, मतलब खोलने की कोशिश करेंगे या बाईपास कर देंगे, और दोबारा हम उसे कर पाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये हम कहते हैं अगर आप ये ब्लड सप्लाई ठीक रखें। आईज में हम कहते हैं आफ्टर एज ऑफ नियर अबाउट द 40 चश्मे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज श्रिंक होने लगती है, उनमें खून कम जाने लगता है, तो दूर दृष्टि दोष से शुरू होते जाता है। अगर वो दोबारा ठीक एक्टिवेट रखोगे तो आंखों से लंबा देख सकते हो। तो ब्लड सप्लाई का पहला सिद्धांत है, तो ब्लड सप्लाई ऑर्गन को चाहिए ताकि नरिशमेंट होता रहे, वो वर्क करता रहेगा। सेकंड थिंग, द ऑर्गन रिक्वायर द रेगुलर नर्व सप्लाई फ्रॉम द ब्रेन। भाई ब्रेन से आने वाली नर्व्स की सप्लाई प्रॉपर चाहिए। अभी अच्छा खासा कोई आदमी खड़ा है, एक ब्रेन स्ट्रोक आ गया, पैरालिसिस का अटैक आ गया, तो वो एबल नहीं होगा अपनी उंगलियों को हिलाने के लिए, क्या यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाए, चल ना पाए, उठ ना पाए, बैठ ना पाए। अगर आप दोबारा उसकी सप्लाई को रिकंटेक्ट मतलब दोबारा जोड़ दो तो फिर दोबारा वो इज ओके। थ्रू द फिजियोथेरेपी, योगिक प्रैक्टिस, प्राणायाम, किसी भी तरह से आप जोड़ पाए तो वो ठीक हो जाएगा। एंड थर्ड सप्लाई इज प्राणिक एनर्जी सप्लाई। अभी एक क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा था, प्राण के बारे में पूछ रहा था। देखो प्राण शब्द में ही उसके बारे में सारी डिटेल पहुंची हुई। प्राण शब्द का अर्थ होता है गतीय कंपन। जिस भी चीज में गतीय कंपन है उसमें प्राण है। तो वो बच्चे ने जवाब दिया कि जिस दोनों में प्राण है, वो बिल्कुल अच्छा लगा। सजीव निर्जीव दोनों में प्राण है। हम हिल रहे हैं, बोल रहे हैं, ये स्टैचू नहीं है, इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्राणिक एनर्जी। कोई भी वॉल है, ये स्टैचू नहीं है, दे आर वाइब्रेटिंग, मॉलिक्यूल आर वाइब्रेटिंग। तो वो कह रहे हैं ये बिकॉज ऑफ द प्राणिक एनर्जी, तो हम यहाँ मानते हैं प्राणिक एनर्जी है, तो इसकी वजह से ये सारा कुछ हमें चल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं अगर ये प्राणिक एनर्जी सप्लाई, ये 3 सप्लाई आप कर दोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो इस पे हमने काम करना शुरू किया। लेकिन उससे पहले भी एक बात मैं कहना चाहता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये हमारा काम प्रैक्टिकली साइंटिफिक आगे जाएगा, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। अगर आप चलो मैं, अच्छा मुझे ना एक आध वॉलंटियर चाहिए, एक वॉलंटियर चाहिए। कोई बच्चा आ जाओ, कोई लड़का आ जाओ, कोई लड़का आ जाओ पीछे से, आप आ जाओ बेटे। अस्थमा वाला बच्चा कुछ कह रहा था, आ जाओ बेटा, आ जाओ। एक और आ जाओ, एक बच्चा और आ जाओ। आज कोई 2 बच्चे आ जाओ। देखो ऐसा है कि इस लेक्चर को तो बाद में करेंगे, मेरे पास एक चीज़ है। मैं तो देखो हरिद्वार ऋषिकेश के लोग हैं, तो हमारे साथ क्या है कि आदमी को हम जब मजाक मजाक में कहते हैं, अगर हम किसी को बुलाते हैं तो आ जाना चाहिए, बोला नहीं आएंगे तो मटके में आओगे फिर। तो हमारा निमंत्रण कोई अस्वीकार नहीं करता। तो बोले गुरुजी बस आपने, मैं जिसको फ़ोन करता हूँ एग्जामिनर कि भाई हाँ भाई साहब आ रहा हूँ, यार ऐसा मत कहो, मैं फिर हमारा तो दूसरा वाला बुलाएंगे, उससे पहले आ जा, तो वह आ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो हमें कोई मना नहीं करता। कॉन्फ्रेंस में बुलाओ, ज़्यादा आते हैं, एक बुलाओ 10 आते हैं, भाई साहब हमें भी आ जाएंगे। तो अब मैं आया हरिद्वार ऋषिकेश से, सर गुलाब सिंह से बड़ा प्रेम है, उनसे मिला, सर से मिला तो लगा वर्षों से जानता हूँ, सत्यम वगैरह सारे ये टीम है, मैडम बहुत, इनसे बहुत बात होती रहती, फ़ोन पे दर्शन कम होते हैं। तो मैं यार आ जाता हूँ। फिर वो यार अब आप आए हो तो भाई आए हो तो कुछ लाए हो, लाए हैं। तो मेरे पास एक प्रैक्टिकल चीज़ है, सब सीनियर प्रोफेसर बैठे हैं, आपको इफेक्ट ऑफ एक मेडिसिन दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ठीक अभी एक ठीक किया था ना पेशेंट मैंने सुबह मॉर्निंग में आपके वहाँ, दर्द वाला, अभी ठीक हो गया। अब मैं दिखा रहा हूँ कि एक मेडिसिन है, ये बच्चा खाएगा और उसको देखो चमत्कार कितनी तेजी से उसका इफेक्ट होता है। दो भाई इनको, भाई है जब दवाई लाएं बांध बूंद के,
सबको देंगे बाद में, पहले इन दोनों को देंगे। देखो सर, हमारा तो काम है चीजों को बनाने का। ये दवाई बनाई बहुत अद्भुत, बेस इसका शहद है, खुल भी नहीं रही है तो बड़ी महंगी दवाई ना, टाइट करके रखनी पड़ती है। थोड़ी सी दूंगा, अब देखो कितना मजा आने वाला है इसको। ये शहद के साथ इसको है, खा ले, तुरंत खाओ। हाँ चम्मच अंदर चट ले। हाँ ठीक है, हाँ जेंट्स यार भैया महंगी है, ऐसा ना करो, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा ले, तुम दे के लाओ, तुम्हारे को दूंगा, जल्दी धो के ला, जल्दी जा, दौड़ के आ, जल्दी धो के लाओ। अब ये बताएगा इफेक्ट कैसा लग रहा, कैसा लग रहा, कुछ तो बता दे भाई। तो मीठा स्वाद लग रहा है, मीठा स्वाद लग रहा है, ठीक है भाई, मीठा लग, ठीक लग रहा, कुछ अच्छा सा लग रहा, थोड़ा अच्छा सा लग रहा। इफेक्ट तो थोड़ा नीचे तो जाने दो, एसोफेगस के भी इधर ही है सर, थोड़ा नीचे आने दो, आएगा, ताकत आएगी, कूदेंगे फांदेंगे, ये तो ये बताएंगे, हमें क्या पता। तो कई चीजें हैं जी हमारे पास। तो अब देखो जी, क्लिनिकल ट्रायल है, एक पे थोड़ा ना, दूसरे पे भी तो उसी का होना चाहिए सर, नहीं फायदा क्या। अब देखो इसको देता हूं मैं, ये बताएगा कि अगर दवाई सही है तो दोनों पे असर, नहीं फटाफट पी ले, बस पी ले भाई, घबरा मत। अरे आ जा इधर, अरे दोस्त ये बाद में धो लेंगे, तो रोज का काम है, ठीक है सर। अब सुनो मेन पॉइंट, ठीक है। ब्रश भी कर ले, मैं सुबह इससे मैंने किया और डिटॉल से धो रखा, ये ब्रश करेगा, मैं डिटॉल से धो के लाया हूँ, ठीक है। नहीं कर रहा, मना कर रहा जी। मैं क्या कह रहा सर, अभी आपके सामने देखो, एक चम्मच थी, फट इसने मुंह में डाली, वो धो के ले आया तुरंत। मैं कह रहा से डिटॉल से धो के लाया, कर ले, मना कर रहा। डिटॉल से धोया हुआ है, सुबह किया मैंने ब्रश, फिर धोया के लाया, करें। बस यहां से मेरा लेक्चर शुरू हो रहा है। थैंक यू। आपको मैंने सिर्फ सिंपल शहद दिया, मैं आपको बता रहा था सर, ये एक प्रॉब्लम हमारे साथ है सर, कि ब्रेन के पास एक मैसेज है, ब्रेन के पास मैसेज है कि चम्मच जूठी नहीं होती, ये ब्रश बहुत जूठा होता है, तो वो इनटेक नहीं कर रहा है। अभी आपके सामने बच्चा 5 सेकंड में गया, धो के ले आया, तो ब्रेन ने उसको स्वीकार किया कि चम्मच 50,000 मुंह में जा, पर्सनल भाई, मैं तो फिट आदमी हूं, मेरा पर्सनल है, ये चम्मच तो नहीं जाने कहां कहां घूम के आई है। तो ब्रेन के पास अगर कोई मैसेज है, ये दिस अ पार्ट ऑफ योगा थेरेपी मैम, कि ब्रेन के पास मैसेज है मैं बीमार हूं, तुम 1 करोड़ रुपए की दवाई भी नहीं आपको ठीक नहीं करेगी। मैसेज है ना, देखो नहीं लिया बच्चे ने, ये होता ही नहीं जूठी, तुरंत धोया, 1 मिनट भागा ले आया। तो दिस इज द थिंग्स हम लोग जो पढ़ा रहे हैं योगा थेरेपी में, हम ये अभी पूरी दुनिया पढ़ा रही है, अब तो हमारे को सारा कॉपी कर। सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ा है, इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम थायराइड, प्रोग्राम क्या है, मेरे को बोला यू आर सफरिंग डायबिटीज मेलाइटस, तो मेरे दिमाग में क्या प्रोग्राम है, सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे थायराइड की गोली खानी है। तो आप समझ लो, ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड में यू आर ऑलवेज इल, आपके सबकॉन्शियस में है यू आर इल। आपको कौन ठीक कर सकता है? अगर ठीक हो जाओ तो मेरा नाम बदल देना। थायराइड की दवाई कभी बंद हुई हो 25, 50, 75, 100 या 100, 75, 100 बंद नहीं होगी कभी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से मैसेज ऑलवेज हमारे हार्मोन्स को है, ग्लैंड्स को है, यू आर इल। तो कोई आपको नहीं ठीक कर सकता। तो ये हमारी दिक्कत क्या है, ये होता है जो ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग हो गई, वो सबसे खतरनाक प्रोग्रामिंग है। मैं इसका उदाहरण देता हूं। हमारे वहाँ ये योग के विद्यार्थी हैं, हमारे मन को कहते हैं जड़। वो बताए, ध्यान के अध्यापक भी हमारे कहाँ हैं, ध्यान के टीचर हैं बेटे? नहीं, कोई बात नहीं। तो मेडिटेशन में हम लोग ध्यान में कहते हैं ना, तो हमारे वहाँ कहते हैं कि जो मन है वो जड़ है। ये तो पढ़ते हो सांख्य में, ये तो पढ़ते हो, मन जड़ है, मतलब ये कुछ नहीं कर सकता, ये जड़ है, चेतन नहीं है। तो चेतन, कॉन्शियसनेस द नेचर ऑफ सोल, आत्मा चेतन है, मन जड़ है। तो बोला ऐसे कैसे, मेरा मन नहीं, मैं नहीं खा रहा, मेरा मन नहीं, मैं नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं, मैं बाहर चला गया, हर चीज में तो मन है। तो बोले जड़ कैसे है? तो लेकिन हमारे वहां कहते हैं जड़ है, ये कुछ नहीं करता, लेकिन सब कुछ आपके मन से। तो कहते हैं ये ऐसा नहीं है। तो हम लोग कहते हैं मन तो जड़ है, जैसे ये है, ये कुछ है, खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं करता। तो वो करता कौन है फिर? तो बोले ही व्हाट ही इज डूइंग, ये प्रोसेसिंग करता है। आप कुछ भी डालोगे उसकी प्रोसेसिंग करेगा, सिर्फ प्रोसेसिंग करेगा। जड़ है, चेतना आत्मा है।
तो आत्मा की चेतना से इसमें कुछ, मरे हुए आदमी का मन कर रहा है खाना खाने का, बताओ? अरे करता है क्या? जड़ है तो खत्म हो गया। जैसे ही चेतना निकलेगी कुछ नहीं करेगा, तो ये जड़ है। ये क्या करता है, जो आत्मा कहती है, मतलब जो आत्मा की कॉन्शियसनेस से कॉन्शियस होता है, तो जो इंद्रियां कहेंगी उसको ये शुरू कर देगा प्रोसेस करना। ये प्रोसेस करेगा, आप एक बार डालोगे उसे अनंत कर देगा। तो मैं इसमें एक विचार डाल दूं, कोई एक विचार, मुझे ठीक होना है, सपोज, तो एक विचार डालूंगा, ये क्या करेगा देखो, मुझे ठीक होना है, डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ, टाइम से सो, टाइम से खाओ। देखो मैंने एक डाला, अभी तक लगाया ना करने में, अभी तक लगाओ, इतना प्रयास करेगा। और यहां से आप लोग बीमार होते हैं, खत्म हो गया? ये खत्म नहीं होता मैडम, ये खत्म है ही नहीं। अगर ये अच्छा विचार अब सबकॉन्शियस में है, ये वापस आएगा, देखो सबकॉन्शियस से वापस आएगा, मुझे अच्छा होना है। और कितना स्ट्रांग होगा, मुझे ठीक होना है, मुझे अच्छे डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, मुझे हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए, वापस आ रहा है, मुझे खाना बढ़िया खाना है, दवाई टाइम से लेनी है, सोना टाइम से है, मुझे गुस्सा नहीं करना, वापस आ गया देखो, और बढ़ता जाएगा, ठीक होना है, होऊंगा होऊंगा होऊंगा, हो गया। उल्टा कर लें, उल्टा, मैं बीमार हूं, अरे कुछ नहीं, इसके पास ये बेकार है, तो डॉक्टर ही ठीक नहीं लग रहा, ये सामने खड़े जो, अरे तो डॉक्टर भी नहीं लग रहा, कुर्ते में आ रहा, टाई भी नहीं इस पे, तो बेकार है, कुछ नहीं हो रहा, वो नेगेटिव, कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, मेरा सबकॉन्शियस में ये पड़ा है, मैं बीमार हूँ, मैं दवाई नहीं ले रही, मैं उठ नहीं पा रही, मैं चल नहीं पा रही, कुछ नहीं हो रहा, हो रहा, अमृत पिला दो, हो गया नहीं, देखो वो नेगेटिव इतना स्ट्रांग हो गया। अभी तक कोई ठीक नहीं कर सकता, एम्स अपोलो सब फेल। तो ये मैं आपको, ये पावर ऑफ द ब्रेन है, जिसको आप प्रैक्टिकल देख लो। और ये जड़ है, ये जड़ है, ये कुछ नहीं करता, लेकिन सब कुछ यही करता है। तो आप अपनी प्रोग्रामिंग में थोड़ा साइलेंट कर दो बेटा, मेरे पास बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं, तुम्हारे पास कहानी वाले बहुत सारे मिलेंगे, मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा सब चीज तुम्हें, है ना। ब्रेन काम करता है, उसका प्रैक्टिकल दिखा दिया, कैसे काम करता है, हर चीज में प्रैक्टिकल साइंटिफिक बताऊंगा। कोई मैं नहीं कि जड़ चेतन आत्मा परमात्मा, फिर बड़ा बोरिंग हो जाएगा, आधे सो जाएंगे आधे भाग जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ले लो। तो आपको नेक्स्ट कह रहा हूँ, अगर ब्रेन के अंदर नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, आप नहीं ठीक हो पाएंगे। अभी अच्छा, एक दूसरा, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बात आपसे कर रहा था, अभी मॉर्निंग भी बच्चों से बात कर रहा था, एक कार्डियक अरेस्ट बढ़ गया थोड़े से, नहीं थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा, सारे मतलब मेरे साथ के भी 3 चले गए, मैं बिल्कुल 3 बढ़िया, 3 कार्डियक अरेस्ट से चले गए। तो भाई हुआ क्या, जिम जाने वाला, जिम वाला, तो बोला इससे पहले, अभी हम कह रहे थे ये 3 आर्टरीज हैं, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लग रहा है, ये ब्लॉक करे, कोलेस्ट्रॉल लग रहा है ना, कूड़ा भर रहा है, एक पाइप में कूड़ा भर रहा है, तब खून रुक गया, अटैक आया, ठीक है। बोला ये तो रोज दौड़ रहा है, तेल भी नहीं खा रहा है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस अब ये शिंक हो रही है, आप समझ रहे। पहले में ये तो पाइप तो वैसा ही है, उसमें कूड़ा लगा है, अब ये शिंक हो रही तनाव से, तो बिल्कुल पतला दिख रहा, पेट नहीं है, वेट बीएमआई ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट है, खत्म हो गया। द रीजन बिहाइंड द बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल नहीं पता, स्ट्रेस से वो आर्टरीज शिंक हो रही हैं। तो ये चीजें हमें देखनी है कि तनाव को नहीं लेना है, स्ट्रेस लेवल को बहुत बहुत आराम से, बिल्कुल रिलैक्स। और मैं मजाक में भी कह रहा था कि आपको कि कभी भी तनाव की तरफ मत जाइए, लाइन ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको बनानी पड़ेगी, नहीं तो परेशानियां तो 24 घंटे आपके पास है। तो हमने ये काम किया, कम टू द पॉइंट, कि भाई ये 3 चीजें हम फ्री कर लें। इन 3 चीज का आइडिया कहां से आया, एक तो नाड़ी वाला सिद्धांत स्क्रिप्चर में, दूसरा आया जो मैं अभी कल बच्चों से बोल रहा था कि भाई लेटेस्ट साइंस क्या करता है, आपको ये देखना है लेटेस्ट साइंस क्या करता है। लेटेस्ट साइंस में जो हमारे डॉक्टर क्या करते हैं, एलोपैथिक में व्हाट इज द मीन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी में वो क्या करते हैं, या ट्रॉमा, मेरा जूनियर है, ट्रॉमा का हेड है एम्स ऋषिकेश में, केजीएमसी में पढ़ता था, मैं क्रिश्चियन में था, तो बहुत क्लोज है, 11वीं 12वीं से मेरे साथ बड़ा रिक्वायर। तो दे आर डूइंग द ट्रॉमा, भैया कोई एक्सीडेंट हो हम तुरंत ले लेंगे। तो व्हाट दे आर डूइंग, अगर किसी को कुछ दिक्कत आती है तो एलोपैथिक का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। उदाहरण के लिए कोई पेन हो रहा है, बोला मेरे यहीं बैठे बैठे किसी के पेन हो रहा है, बोले धीरे से लेक्चर खराब हो जाएगा, एक गोली ले, पानी पी ले, तुरंत आराम मिलेगा, पेन किलर। बोला तेज पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, गोली को मैश कर, पानी में घोल ले, पी ले, थोड़ा तेज हो जाएगा।
बोला बहुत तेज पेन हो रहा है, बैठना भी जरूरी है। फटाफट जा इंजेक्शन ले ले, और तेज जल्दी चाहिए। बोला ऐसा कर, पर्टिकुलर जहां दिक्कत है उसी एरिया में इंजेक्शन ले ले, उससे रिलेटेड। यही तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है फास्ट। लाइफ सेविंग इंजेक्शन लास्ट में कहाँ लगाए जाएंगे? यही लगाए जाएंगे, वही लगाए जाते हैं। कैंसर के लिए तो कंध योनिस्थान नाभि के पास लगाए जाते हैं। कार्डियक में यहीं से कटता है, आपको इलेक्ट्रिक करंट देता है। तो रीजन बिहाइंड कि फास्ट कैसे होता है, तो हमने कहा भी फास्ट मतलब ब्लड के अंदर उस चीज को डाल रहा है। अब हम ऐसा काम करते हैं, तीनों चीजों को फ्री फ्लो कर देते हैं, हम उनसे भी आगे चले जाएंगे। ये तो ब्लड में जाएगा, घूमेगा, तब पहुंचेगा, हम उससे भी तेज जा रहे हैं। तो इसमें हम यही काम करते हैं नाड़ी विज्ञान में। अच्छा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिकलिटी में क्या हुआ, तो हमने सबसे पहले कहां से शुरू हुई कहानी कि योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुरंत रिलीफ होगा, तुरंत रिलीफ होगा, ज्यादा कुछ नहीं करनी। तो हमने तुरंत रिलीफ होगा, तो हमने कहा योगिक अलाइनमेंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फीमेल मतलब L4 L5 S1 लोअर बैक पेन के पेशेंट को बुलाया। हमने सबसे अधिक यही होते हैं, आराम से मिल जाते हैं, इनके ऊपर हम ये नाड़ी विज्ञान को लगाएंगे। तो हमने सबसे पहले बनाया योगिक अलाइनमेंट। अच्छा, हमने कहा हमारा भी तो कोई डायग्नोस्टिक होना चाहिए। अगर कमर दर्द के पेशेंट हैं, आप MRI देखोगे, एक्सरे देखोगे, क्या क्या देखोगे, हमने वो भी देख लेंगे, लेकिन हम अपना एक अलाइनमेंट बना देते हैं कि हम कैसे उसे ठीक करते हैं। तो हमने कहा योगिक अलाइनमेंट बना देते हैं, ये हमारे टूल हैं सर। एक प्रश्न, ये कुछ बैठे विद्यार्थी मर्म चिकित्सा वगैरह करते हैं, तो बोला हम मर्म चिकित्सा से अलग है। सबसे प्राचीन पद्धति आयुर्वेद में मर्म चिकित्सा है। 107 मर्म स्थानों को दबाने की प्रक्रिया, उसका थोड़ा सा रूपांतरण हुआ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में, फिर सुजोग वुजोग जो भी बनता रहा, लेकिन सबसे पहले मर्म चिकित्सा थी। तो बोला आप उनसे अलग कैसे हो, आपके पास तो दबाने का सुजोग जैसा इंस्ट्रूमेंट भी जिमी बिमी टाइप का दिख रहा है। बोला नहीं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ये मैं भी आपको दिखाऊंगा। हम प्रेस नहीं करेंगे, वी आर टचिंग। दूसरा, हम घंटों नहीं रगड़ेंगे, हमें इतना टाइम नहीं है, और फिर उसमें भी टाइम लगेगा। तो बोला हम 2 ही मिनट में और मैक्सिमम 4 मिनट में रिलीफ कर देंगे पेशेंट को। हमारी लास्ट ड्यूरेशन है 4 मिनट, लास्ट वर्स्ट कंडीशन में 4, नहीं तो 2 मिनट में हम सिट कर देंगे, 2 से भी पहले। तो हमने कहा ये हम क्या करेंगे, हमें ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, प्राणिक सप्लाई को ठीक करना है। तो हमने कहा चांदी और गोल्ड के इंस्ट्रूमेंट बना दिया जिससे इलेक्ट्रिसिटी तेजी से जाए। इसलिए इन इंस्ट्रूमेंट को बनाया कि हम उस नाड़ी के ऊपर रखें और फ्री फ्लो प्राणिक एनर्जी कर दें, ब्लड, नर्व, प्राणिक एनर्जी, और तुरंत से रिलीफ हो। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हमने बनाया। और ये हमारा सबसे पहला प्रॉब्लमेटिक लेग था, जिसके भी कमर में दर्द है, मैं भी यहां बुला के दिखाऊंगा, उसका पैर ऐसे छोटा बड़ा दिखाई देगा। दिख रहा है आपको, देख पा रहे हैं? हाँ जी, देख पा रहे हैं? ये एक अंगूठा बड़ा एक छोटा दिख रहा है, बड़ी कृपा आपकी, देख पाया आप। तो ये हमने ये काम किया कि जिसकी भी कमर में दर्द है, आप में से कोई भी अपने घर में देखो, हमेशा ये आपको मिलेगा। अच्छा, ये एक प्रश्न फिर मैं बार बार आता है, मैंने कहा हम हर चीज प्रैक्टिकल में ही करते हैं। बोला यार ये ऐसा हुआ क्यों, भाई क्यूरियोसिटी हुआ क्यों, नहीं हुआ क्यों। तो हमने कहा कि फिर उसका भी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। स्टैचू हिलना नहीं सर, प्लीज हिलना नहीं, कोई भी मत ना प्लीज, जैसा प्लीज, नहीं हिलना नहीं, प्लीज मत हिलो, स्टैचू, भाई मुझे सुनते रहो। ये रीजन है जो मैं अब आपके सामने कह रहा हूं। अब आपने पोस्चर को अपने आप हिलना नहीं, सिर्फ देखो, कोई ऐसा है, कोई साइड में है, कोई आगे है, कोई पीछे है, क्योंकि उसे पता है कि लंबा लेक्चर चलना है बॉडी को। तो मैं अपना अलाइनमेंट कुछ सर का ऐसे कर लूं, कोई पीछे कर लूं, कोई आगे कर लूं, डजंट मैटर करेक्ट है इनकरेक्ट है, उसे मतलब नहीं, क्योंकि लंबा बैठना है, इसलिए मैं अपने अलाइनमेंट को इस तरह से रखूं ताकि मैं पूरा सुन सकूं, रिलैक्स। तो हम अपनी बॉडी के अलाइनमेंट को, अगर थोड़ी भी दिक्कत होगी, बॉडी राइट अवे उसे चेंज करेगी, राइट अवे चेंज करेगी, डजंट मैटर वो सही है कि नहीं। ठीक है, मैं हमेशा एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। अगर मैं चलते चलते यहां पर मेरा पैर थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए, ये ऐसे हो जाए, तो सबसे पहले तो मैं अपनी बॉडी को, आधार लाइन को बड़ा करूंगा जिससे मैं गिरूं ना, हाथ ऐसे हो जाएंगे। और उसके बाद अगला एक्शन के लिए मुझे MSc PhD फिजियोलॉजी कुछ नहीं पढ़ना, अगला एक्शन है लिंपिंग, ऐसे चलूंगा, कहीं पढ़ना नहीं, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं। बोला ऐसा, अरे भाई तू तो ऐसा खड़ा था, अब ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों, बॉडी का मैसेज आ गया, बॉडी ने कहा ये दिस इज योर एप्रोप्रिएट अलाइनमेंट, कॉलर से टच हो रहा है एकदम सीधे, आप ऐसे थे, अब आपको ऐसे होना है। सारा प्रेशर कॉर्डियोसेप्स में, एक ही मसल के, एक ही नी पे, एक ही गैस्ट्रोनमियस, एक ही फैलेंजेस,
पूरे पैर के नीचे तक जा रहा है, एक ही प्रेशर, और आप लिंपिंग कर रहे हैं, तो बॉडी ने कहा अब इसमें पेन हो रहा है, ये नया ऑक्यूपाई कर लो, जब ये ठीक होगा तब हम शिफ्ट करेंगे। तो बॉडी हमारे पास एडवांस स्टेज में हर कुछ करती रहती है, उसका एक अपना सिस्टम है। आप जो कुछ भी करोगे उसके पास अपना जो सिस्टम होगा उससे आपको रिलीफ करना शुरू कर देगी, जब तक कि आप उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करो। ज्यादा छेड़छाड़ करोगे, इंजेक्शन लगाओगे, सेंस कम होगा तो दिक्कत होगी, अच्छा फिर भी कोशिश करेगी रिवाइव करने की, लेकिन जब आप अति टॉक्सिन्स डाल दोगे तब फिर वो ब्लास्ट हो जाएगी, फिर नहीं कर पाएगी कुछ। तो हमारी बॉडी का बेसिक फंडा है कि हमारा अलाइनमेंट कार के अलाइनमेंट की तरह है, अगर आप अलाइन नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे आपको प्रेशर पड़ेगा और ये दिक्कत आएगी। तो हमने ये करा, ये अलाइनमेंट किया। अच्छा, L4 L5 S1 के ट्रीटमेंट में फिर हम ये कहते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एलोपैथिक क्या करता है, मैं सुबह मॉर्निंग बच्चों से बात कर रहा था, मैं देखो साहब लेटेस्ट साइंस में लेटेस्ट क्या हो रहा है, अगर आपको नहीं पता आप आउटडेटेड हो जाएंगे और फिर आपकी पूछ नहीं होगी। लेटेस्ट क्या हो रहा है और वैदिक क्या हो रहा है, इसको मिला के आपको चलना पड़ेगा, और लेटेस्ट के साथ जोड़ दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, पेन की सबसे पहले कमर में दर्द हुआ क्या बोलेगा, सबसे पहले भैया पहले पेन किलर खा। तो सबसे पहले क्या है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, पेन किलर। नंबर 2 मसल रिलैक्सेंट, नंबर 3 नर्व रिलैक्सेंट, नंबर 4 एज पूछेगा B12 D3 कैल्शियम। फिर आगे दिक्कत हो रही है न्यूरोमिन, फिर स्टेरॉइड में आ जाएगा। और दिक्कत हो रही है, हम ऑपरेट कर देंगे, तो बोल रहा था वो हम ऑपरेट कर देंगे। भाई ऑपरेट कैसे कर दोगे, वो तो बड़ी कठिन काम है, इतनी बड़ी समस्या तो है ही नहीं, कल तक नहीं थी आज में हुई और आज ऑपरेशन की जरूरत आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो हम कह रहे हैं ये उनके पास लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, तो हमने कहा ये काम हम करते हैं, मसल रिलैक्सेंट कर देंगे, नर्व रिलैक्सेंट का काम कर देंगे, और फ्री फ्लो ऑफ प्राणी करने जहां तक नहीं पहुंच रहे वो भी कर देंगे। और ये नाड़ी विज्ञान फिर वहीं से बता रहा हूं, ये नाड़ी विज्ञान मर्म चिकित्सा से अलग ऐसे है, 107 मर्म स्थानों को दबाने की बात नहीं करता है, जहां पर ब्लॉकेज है उसे रिकॉग्नाइज करता है और वहीं पर इन तीनों फ्लो को मेंटेन करता है। इसीलिए वी आर द फास्टेस्ट वन, हम सबसे तेज हैं। दूसरा, मर्म चिकित्सक जो भी है हमारे, उनके साथ क्या है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, वीक है, बीमार हो जाते हैं, क्योंकि बार बार आदमी को छूते हैं, दबाएंगे 5 मिनट 4 मिनट 2 मिनट, तो कितना दबाएगा, ये भी दिक्कत है। तो हमने कहा भाई हमें अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है और बहुत कम प्रेशर से, 0 प्रेशर से हम इसे करके आपको ठीक कर देंगे। तो ये हमने काम कर लिया और इसे रिलीफ कर दिया। आप देखो लगभग बराबर हो गया, पहले ऐसा था लगभग बराबर हो गया, तो इसको तुरंत रिलीफ हो गया। ठीक है सर, इसमें कायरोप्रैक्टिस की तरह कटक पटक कुछ नहीं करना, झटक पटक कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ब्लॉक नाड़ी के पास जाना है, उसे फ्री फ्लो करना है, टच करना है, और मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, और आपको रिलीफ हो जाएगा। और ये हमने काम किया लाखों लोगों पे, ये नहीं करा कि 2 4 5 लोगों में, हमने लाखों लोगों पे काम किया सर। और उससे बड़ी बात, ऑलवेज रिसीविंग 100% रिजल्ट। ऐसा नहीं हुआ कि भी कहीं यहां काम नहीं हुआ, तो हमने इसे काम को शुरू किया और हमें 100% रिजल्ट मिले। और आप देखो कि हमने कहां कहां किया, वो वाला पीपीटी नहीं था, दूसरा वाला लगा दिया तुमने। हाँ, हमने काम किया सर। सबसे पहले हमने बहुत जगह काम किया, लेकिन सबसे बड़ा काम बता रहा हूं, ये हमें इनवाइट किया ओलंपिक कमेटी ने। तो आई एम द फर्स्ट गाय इनवाइटेड बाय द ओलंपिक कमेटी, जिसने हमें 10,000 एथलीट फॉर 100 कंट्रीज को सबसे पहले योग को इंट्रोड्यूस कराया। ये 2008 का है, भूसान में। हमारे उस समय सर बैठे हैं गुलाब सिंह सर, कि 32 गेम का ओलंपिक होता था सर, अब तो बढ़ गया। तो उस समय उनके बाद जो गेम बचते थे उनका भी सेम ओलंपिक होता। ओलंपिक कमेटी का साइन बना है, ओलंपिक कमेटी से कराती है भूसान में। तो आई एम द पायनियर, मुझे बुलाया गया कि भाई आप आओ, क्योंकि साउथ कोरिया में विजिटिंग प्रोफेसर रहा चुने कॉलेज हेल्थ साइंसेज में 2003 से लगातार, तो वहाँ पर काफ़ी काम हमने किया। तो उन्होंने कहा कि आप इसे, हम यू आर द पायनियर, तो आई एम द पर्सन, योग के लिए मुझे बुलाया गया वहाँ पर। तो हमने उनको पहली बार ट्रेनिंग दी, एक ही स्टेडियम भूसान में, 100 देशों को 10,000 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी। ये बड़ा इवेंट था। इसके बाद हमारा था, देखिए इंडिया में सीनियर प्रोफेसर बैठे, कहना नहीं चाहिए, इंडिया बहुत कठिन काम है। आप जिस सीट पे बैठे हैं मैडम, वो सीट इतनी खतरनाक सीट है, जो इस जैसे इंडिया का बॉर्डर पार करते हो, ये चुटकी का काम है। और इंडिया में नाक रगड़ने का काम है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बहुत ही कठिन काम है दुनिया का। बोला क्यों काम है, पहले तो मास्टर्स करेगा, कौन सी बड़ी बात है, 55% भी मेंटेन कर, कौन सी बड़ी बात है, फिर नेट कर, वो ठीक है, फिर पीएचडी करने के लिए जीआरएफ कर, बोला कोई बात नहीं कर लूंगा, फिर पीएचडी कर ले, वो कोई बात नहीं,
उसके बाद तुम आयोग के पेपर दोगे, आयोग के पेपर में पास हो गया तो फिर मेरिट में आना पड़ेगा, फिर मेरिट में आना पड़ेगा तो हो सकता है कृपा भी किसी की लेनी पड़े, वो भी हो गया जुगाड़, उसके बाद कोर्ट केस होगा, उससे बच गए देन यू कैन सिटिंग ऑन द सीट। इतनी लंबी, हमारे वहां कोर्ट में जा रहा है मामला, इतनी लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद उस आदमी को क्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, यार तू इस कमेटी को देख ले, तू उस कमेटी को देख ले, तू इसको देख, अब तो एक सुपर ब्रेन तुमने लेके उसे कमेटियों में बांट दिया, आधा घंटा उस मीटिंग में, 1 घंटा उस मीटिंग में। तो वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। मैं प्रोफेसर भाई यौगिक साइंस का, अब मुझे तुम्हारी उन कमेटियों में मुझे मतलब नहीं है हमारे बस का, वो हमें क्यों करवा रहे हो, हमें पढ़वाओ, और जबरदस्ती की रिसर्च करवा रहे हैं, वो भी गलत है। तो रिसर्च इज अ डिफरेंट पार्ट, वो भी मत कराओ। मैं तो बहुत इसके जबरदस्ती के पेपर लिखवाओगे तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत आएगी। और लिख तो एआई लिख देगी 5 मिनट में, वो तो हो ही रहा है, वो लिखवा देंगे। भारत में तुम जैसा करोगे हम वैसा करेंगे, और टीचर तो कितना तेज है, किताब बोले अब किताब लिख देंगे, पेपर बोले पेपर लिख देंगे। तो जबरदस्ती मत लिखवाओ, हमारे इंटरेस्ट में, मेरा इंटरेस्ट है मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो इन्वाइट मॉस्को गया, उन्होंने अरे भाई साहब कितने, अरे भाई साहब तुरंत आओ हमारे वहाँ मॉस्को मेडिकल यूनिवर्सिटी में, आपके पास क्या है, मैं ये है। तो वो प्रोफेसर ने कहा सबसे पहले मेरे ऊपर करो, अगर तुम्हारे ये टेक्निक है मेरे ऊपर करो। तो इन्वाइटेड मी, उनका डिपार्टमेंट है, तो न्यू आइडिया में वहाँ लेकर गया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, बोला बहुत अच्छा काम है, आप आओ हमारे वहाँ लेक्चर भी दो, वर्कशॉप भी दो। हमने वहाँ वर्कशॉप कर लिए कई प्रकार की, एक सेंटर बना लिया, एक सेंटर ही बना दिया उधर मॉस्को में। मैं साल में 2 बार वहीं जाता हूँ। फिर उसका डिस्कशन, फिर वो तो अंग्रेज है ना, बोला देखो डॉक्टर साहब आप दर्द ठीक करें, ठीक बात है, इसे पेटेंट करा लो, फिर देखो मजा। और पेटेंट कैसे कराओगे कि जैसे अभी हम लोग इसका पेपर छापना चाहेंगे, तो हम क्या पेपर छापेंगे, पेन स्कोरी तो मांगूंगा, आपने कहा इसको बुलाओ, एक बच्चे को भी दिखाऊंगा, आप कितना पेन है, 10 में से नंबर दे, उन्होंने कहा 9 नंबर, 9 तक का पेन है, आफ्टर द ट्रीटमेंट 1 या 0, तो मीन निकाल के वही तो पेपर छपेगा। फिर क्या करेंगे, बोला ना हम आपके ब्लड में कुछ चीज़ बढ़ती है वो भी ढूंढ के दे देंगे, वो छपवा देंगे, हमारे साथ काम कर लो। मैंने लेकिन फिर पेटेंट मास्कोर आपका, आपको मिलेगा पैसा और हमें मिलेगा पैसा, सब चीज़ बनेगा पैसे से। हमने भाई हमें नहीं कराना, हम भारत वाले हैं, हमारे तो गुरु शिष्य परंपरा है, हमें कोई पेटेंट की जरूरत नहीं, हम आपके साथ नहीं, हम डूइंग। तो दे आर डूइंग अपलॉट, बहुत बार किया, लेकिन पेटेंट वहाँ नहीं, उनके साथ नहीं किया। फिर हमने इसकी वर्कशॉप बाली में हिंदू कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर रहा, वहाँ के गवर्नर है, वहाँ काम किया। अच्छा हमारे गवर्नर हैं रहे, यूपी में भी रहे कुछ दिन, अजीत कुरैशी। वो जब गवर्नर रहे तो उससे पहले मैं गवर्नर का डॉक्टर रहा, तो कुरैशी जी आगे तो मैं ऐसा था, तो मेरे मन में ऐसा विचार है क्या पता उन्होंने मतलब मुझे नहीं बुलाएंगे, गवर्नर सबका मैं चिकित्सक रहा। तो ही इज ओनली द पर्सन, उसने वो इतना गजब गवर्नर थे, मेरे घर आते थे रोज, इतना गवर्नर कभी आ जाएगा, क्योंकि आज उनके घर पुलिस वाले पर्सन, भाई साहब मत बुलाया करो, हमारी दिक्कत होती है और उनकी दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे लिए, ये लास्ट दिन का है, जिस दिन हटे उस दिन का कैंप है, मेरा लास्ट कैंप था ऋषिकेश में। तो उन्होंने कहा नाड़ी विज्ञान का इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, 1 करोड़ रुपए हमारी यूनिवर्सिटी को दिया, और हमारा कॉन्फ्रेंस राजभवन में कराई, इतना इंप्रेस थे। तो ही इज द पर्सन, उन्होंने नाड़ी विज्ञान बोला ये चीज़ होनी चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ है, और बहुत उन्होंने काम कराया इसमें, और ही इज द वंडरफुल गाय। फिर हमने इसका बुल्गारिया, जहाँ जहाँ हमारे को थे इंटरनेशनली, हमने इसमें वर्कशॉप की, जहाँ जहाँ फेडरेशन थे वहाँ वहाँ हमने इसका काम किया, पुलिस के लिए काम किया, चाइना सब जगह काम किया इसमें, स्पेन, लगभग सब जगह ये वर्कशॉप हो गई। ठीक है, जहाँ जहाँ हम जा सकते थे, श्रीलंका जितनी। अच्छा इसके लिए इन्होंने अवार्ड भी दिए, हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, हमारे ये मोतीलाल वोरा जी ने इसके लिए अवार्ड दिया, कुरैशी जी ने इसके लिए अवार्ड दिया, हमारे ये शिक्षा मंत्री निशंक जी हैं, हमारे सीएम रहे, इन्होंने, इनका तो बहुत क्लोज रहे, अभी भी इनके वहाँ रहे। फिर इसकी हमने काफ़ी वर्कशॉप कर दी, और मास्टर ऑफ योगा थेरेपी मिला, ये सारे अवार्ड्स मिल गए। हमने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, एक छोटा सा आसनों का, रामदेव जी महाराज, ये सब हो गया। ये तो छोड़ो, इसके कोई मतलब नहीं, अवार्ड ऑनर ये कोई मैटर नहीं करता है। अब मैटर क्या करता है कि ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको यकीन हो कि कहाँ कहाँ काम कर चुके। ठीक है, ये सारा काम कर चुके। अब आप देखिए आप करना क्या चाह रहे हैं, मतलब मैं क्या सिद्ध करना चाह रहा हूँ, योग बहुत क्विक है, तो हमने कमर दर्द के लोगों को ठीक करके सिद्ध कर दिया, हो गया, बहुत पूरी वर्कशॉप कर दी हमने। HRDC में कई जगह, हिमाचल, कुमाऊं, सब जगह से जाके बोल दिया, आपके यूनिवर्सिटीज़ में सब जगह चले गए, ऐसे डिपार्टमेंट्स में चले गए, BHU, AMU सब जगह हुआ है, जहाँ जहाँ जा सकते थे। तो एक दिन धर्मपत्नी ने बोला कि ये एक बात कहनी है। अच्छा फीमेल वेरी थोड़ा बहुत डिवोटेड होते हैं, तो बहुत डिवोटेड और बहुत सीरियस भी होते हैं, मतलब जैसे हम थोड़ा सा टिकट ग्रांटेड लेते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सीरियस। उन्हें जी एक बात बताओ, मैं एक चीज़ देख रही हूँ। क्या देख रही हो?
कि जो भी मैंने आपको फीमेल दी L4 L5 S1 की, जिनके भी 8 साल से ज़्यादा पेन था, उनका यूट्रस रिमूव हो गया। और भाई जैसे ही कहा, और मेरे को कितना गुस्सा आया होगा, कैसी बात करती हो, JRF हो के ऐसी बात करती हो, हैं गोल्ड मेडलिस्ट हो के ऐसी बात करती हो, ऐसी कोई बात करती है साइंस के स्टूडेंट हो आदमी को होता है डोमिनेटिंग, तुरंत बोलना शुरू। वो तो और बड़ी, कागज़ देखो जी, है ना, कागज़, हम कागज़ भरवाते हैं, आपका नाम पता ये वो, देखा कागज़, हाँ जी बात तो सही है, 50 कागज़ मेरे आगे फेंक दी, ये देखो इतनी जगह ये कॉमन चीज़ आई, मैंने नोट करी। भाई क्या, तो मैंने कहा मैं भी अपने कागज़ देख लूँ, आदमियों को भी तो कमर दर्द था, उनके भी तो कुछ हुआ होगा। बोला हाँ ठीक है, तुम अपने देखो। तो मैंने अपने मंगाए, L4 L5 S1 में हमने उनको देखा, तो एक कॉमन चीज़ आई, या तो डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट है, या यूरेथ्रा में कोई दिक्कत है। बोला कॉमन हो गया, उधर यूट्रस इधर यूरेथ्रा, यार ये तो कॉमन हो गया। तो बोला सर्वाइकल वाले भी तो ठीक किए थे। बोला सर्वाइकल का कागज लाओ, सर्वाइकल का कागज खोले तो C67 में कोलेस्ट्रॉल है, स्नोरिंग है सर्वाइकल के पेशेंट के, और ये सब चीज़ें हैं। भाई साहब ये भी कॉमन आ गया। देन भाई ये तो कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो आप देखो हम क्या काम करना चाह रहे हैं, सिर्फ सिद्ध करना चाह रहे हैं कि योग जल्दी काम करता है। अब क्या चीज़ बना दी है, अब देखो भगवान ने क्या चीज़ बना दी है। अच्छा ये पेशेंट का फीडबैक है, कोई इनका छोड़ दो, फीडबैक की जरूरत नहीं, इसे हटा दे। अच्छा ये तो फीडबैक सुनेंगे इसका कुछ, अच्छा चलो सुना दो आवाज़ इसमें। अच्छा माइक की व्यवस्था नहीं, छोड़ दे। ये सब हमारे फीडबैक हैं पेशेंट्स के। नहीं वो वाला कहाँ गया हमारा मेरुशोधन, ये तुमने अलग वाली लगा दी इस बार, वो वाली नहीं जो मैंने भेजी थी, वो वाली चीज़। तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ है, कहाँ गए वो, नहीं है, यहाँ है कहीं, ये। तो हमने क्या किया, जब हमने L4 L5 S, बेटा इसे स्क्रीन में लगा दे, जल्दी लगा। देखो हमें पता है ना कि ऐसा भी हो सकता है, तो हम कागज भी लेके चल रहे हैं, ये लगाते रहेंगे, मैं बता दूं। तो हमने आपसे जो कहा L4 L5 S1, ये साइंटिफिक नर्वस सिस्टम का चार्ट है, ये नीचे निचले ऑर्गन में नर्व सप्लाई का साइंटिफिक चार्ट है। तो यानी कि अगर कोई कमर दर्द का पेशेंट है, इसे लगवा दे बेटे, वाला लगेगा, ये लगेगा तो अच्छा लगेगा। ये निशन जी वाला भी डलवा देता, क्यों बाहर कर दो, इसको लगा दो, अगर लग जाए तो ठीक है। तो हमने ये देखा सर, L4 L5 S1 ये साइंटिफिक नर्वस सिस्टम का चार्ट है, आपके निचले ऑर्गन की सप्लाई है। C67 आपके लंग्स, हार्ट, लीवर की सप्लाई है। तो अगर आप अपने कमर दर्द को या किसी ऐसे अलाइनमेंट को ठीक से नहीं देख रहे हैं, तो दिस कैन बी ए कॉज, ये कॉज हो सकता है कुछ ऐसी बीमारियों का, क्योंकि ये तो साइंटिफिक चार्ट है नर्वस सिस्टम का। तो हमने एक क्रिया बना दी मेरुशोधन। तो मेरुशोधन में क्या काम कर रहे हैं अब हम, आप देखो मैं एक ये खड़ा हूं और स्पाइन के थ्रू हम डिटॉक्स करने में लग गए। एक ऑयल बना दिया, देख बेटे, एक ऑयल बनाया, स्पाइन पे उसे रब किया, और उसके बाद फिर नाड़ियों को फ्री फ्लो करना शुरू कर दिया। और आप यकीन करेंगे कि हमने इतना ज्यादा इसमें काम कर लिया। फिर फीमेल में तो पेनफुल पीरियड्स में इतना परेशान बच्चियां होती थी, वो सारा काम हम अपनी 7 सेकंड सिटिंग में इससे दूर कर दे रहे हैं। डायबिटीज के पेशेंट को रिलीव कर दे रहे हैं, स्लिपलेसनेस को ठीक कर दे रहे हैं। ये सारा काम अब हम कर पा रहे क्योंकि हम फ्री फ्लो करते हैं, हमने सर्विसिंग बना दी। तो हम इसे कह रहे हैं कि इसको ले आना, मेरुशोधन को ले आना। तो इसमें तो आप ये देख लो कि अगर आपका पीछे पीछे पीछे, हाँ आगे 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 आगे, अलाइनमेंट के बाद और आगे और आगे और आगे और आगे, बस ये रहा। तो ये मैं आपसे यही कह रहा था कि देखिए ये हमारा साइंटिफिक चार्ट था। अगर कमर दर्द है, स्पेशली अगर कमर दर्द है, तो आपके निचले ऑर्गन में सप्लाई बंद हो रही है, नर्वस सिस्टम का चार्ट है, नर्व सप्लाई ब्लॉक हो रही है। तो हम यही कह रहे हैं आपको, वही लगा के रख बेटे, हाँ
कहाँ चले गए? ये रहा, पीछे पीछे, ये रहा। तो ये आप देखो कि अब मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करने वाला हूं, अगर आपका अलाइनमेंट खराब है, हो सकता है आपकी स्नोरिंग की दिक्कत हो रही हो सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है थायराइड हो, क्यों नर्व सप्लाई को ब्लॉक कर रहा है तो ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर रहा है, ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर रहा है तो प्राणिक एनर्जी सप्लाई को ब्लॉक कर रहा है, और जब पूरा ब्लॉक हो जाएगा तो बड़ा डिसऑर्डर हो जाएगा। तो हमने एक क्रिया बना दी मेरु शोधन, स्पाइन से प्यूरिफाई कर देंगे सारे ऑर्गन। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भी बहुत हमने काम कर लिया। तो जो सीवियर पेन वाले हैं, जिनको दिक्कत है, हार्मोनिकल इनबैलेंस वाले हैं, उन सबको हम इससे ठीक कर दे रहे हैं। तो इसमें हमें 30 मिनट्स लग रहे हैं, एक पूरा ऑपरेशन हो रहा है, टक टक टक, टच पेन वाला, टच, अंदर कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ टच। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एक्यूप्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है, मर्म की तरह दबाना नहीं है, सिर्फ ब्लॉक नाड़ी को पहचानना है, फ्री फ्लो करना है, ब्लड नर्व प्राणिक एनर्जी फ्लो, सिर्फ अपनी एनर्जी से। और वो पूछ रहे थे कुछ सीखने के लिए, मैं सीखने में थोड़ी कठिनाई इसलिए है, आपको एज ए हीलर बनना है, आपको फील करना है इन नाड़ियों को। और नाड़ियों में योग वाले विद्यार्थी जानते हैं सूक्ष्म और स्थूल, दो तरह की नाड़ियां हैं। तो ये जो नाड़ियां हैं वात पित्त कफ, आयुर्वेद में डायग्नोस्टिक में इनको इनकी गति से महसूस किया जाता है। यहां रखेगा, उनकी गति से महसूस करेगा कौन सी गति में चल रही है, वात बड़ा है, पित्त बड़ा है, कफ बड़ा है, ये सारा काम हो रहा है। तो वो हमारे वहां कर रहे हैं सूक्ष्म नाड़ियों में फ्री फ्लो ऑफ द प्राणिक एनर्जी। अगर आपने कर दी तो आप रिलीफ हो जाएंगे तुरंत। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। मैं इस बात को कहने से पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा, कोई कमर दर्द का हो तो आ जाए, ये देख भी लेते हैं कि होता है कि नहीं। आ जाओ आ जाओ, पहले ये बच्चा हो, आ जाओ जाओ बेटे, संभालना बंद करना शुरू कर दे सब, लाइव कर देता, लाइव है, कर दे, खोल देगा। वो कहाँ है बेटा, सॉक्स उतार। हाँ कैसा है, उस पर लेटना कैसा है, कितना मान है, प्रेम से, ना ना प्रेम प्रेम, ले कर लेगा वो, ढंग से तो उल्टा सीधा दिखाता है। हाँ बेटे लेटो इस पर, आप आ जाओ इस पर लेटो, देख लेट जाओ। हाँ और फेस उधर, पैर इधर, हाँ और पीछे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे आगे आगे, बस ढीला कर दो, हाथ पीछे करो। एक मुझे चेयर मिलेगी कोई, एक चेयर ले आओ वहाँ से छोटी। बस गिरना मत, जोश आ जाता मुझे। नहीं देखता रहे, ठीक है। ये एक थोड़ा सा अलाइनमेंट आउट है, ये छोटा एक बड़ा है, इसको देखते हैं। उधर पब्लिक दिखा दे भाई, हमें दूर से, यहाँ नहीं दिखा, पैर नहीं, पीछे से दिखा दे बेटे। अभी रिलीफ हो जाएगा। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, कितना? हो रहा है, यहाँ चुभ रहा है, कितना? यहाँ ठीक है, यहाँ तो नहीं चुभ रहा।